एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए एक नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय में 2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 99.62% कवरेज हासिल कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BDR तिवारी ने बताया कि राज्य के 23,49,645 मतदाताओं में से 23,40,764 लोगों तक गणना फॉर्म पहुंच चुका है। कुछ मतदाता अभी भी ट्रेस नहीं हो सके हैं। 2026. Now we entered in our final phase of house-to-house visit and this enumeration phase. Only one day remaining for the completion of house-to-house distribution and digitization of the enumeration forms before conclusion of this phase of the exercise on the 29th of June 2026. As on today, Meghalaya has achieved remarkable progress in the special intensive revision. Out of total electors, 23,49,645. Total 23,40,764 enumeration form has been distributed, registering an impressive 99.62% coverage across the state, and remaining were not been able to be traced. So simultaneously 22,78,071 enumeration form has been digitized till today, accounting 96.95% of the total electorate, and remaining 3.05% will also be digitized before the timeline. We had a meeting with the representative of the recognized national and state political parties just before this press meet, to review and to brief them about the progress of the special intensive revision and discuss the activities to be completed before publication of draft electoral roll on the 5th August 2026. During the meeting, we shared the latest status of enumeration form distribution and digitization, verification of ASDD cases, absentee, shifted, death and duplicate cases, and other field level activities. Political parties were requested to continue extending their full cooperation and to ensure every eligible elector to cover before the conclusion of the special intensive revision. And they have assured full cooperation, and so far we have not received any complaint from end of any political party in the state. So we are really appreciative to their participation and constructive suggestions received throughout this entire SIR process, and acknowledge the important role played by the booth level agent of the political parties. Now more than 1,600 booth level agents are there in the state during this SIR process, which was zero before we almost going for the SIR. As part of the various monitoring, ग्रामीण लोगों को बड़ी राहत देते हुए ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू करने की पायलट पहल शुरू की है। डिप्यूटी कमिश्नर अभिलाष बनरवाल ने बताया कि पहले चरण में मॉरिंगटन, मॉकिनरिव, सौरा और पेनिसुला ब्लॉक्स में DTO के सहयोग से टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिससे लोगों को शिलोंग का सफर नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन अन्य सरकारी सेवाओं को भी ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। So in line with the instructions by Honorable CM of Meghalaya as well as the Government of Meghalaya regarding bringing services closer to people as well as making the services as accessible to people as possible, we have taken one more step in which with the cooperation of the DTO office, we are trying to organize these driving tests in the block headquarters. As of now, all these driving tests are currently being organized at the district level. So this is on a pilot basis that we have issued one tour program. We are starting with 4 blocks: Morningkneng, Mockinrew, Sohra and Peninsula, wherein
we want to, as of now, conduct the driving test in the block headquarters and simultaneously facilitate the applicants from those areas that they can come to their respective headquarters on that particular day, give their driving test, so that they do not really have to come all the way to Shillong. This we hope will be helpful to the rural area people who will not really have to spend so much on their transportation all the way to Shillong. So what are the other services that, since you have said, bringing government closer to the people, so what are the other services that can be provided, that or maybe that are being provided earlier also? So there are other services as well that those services are currently being mapped, which can be delegated or which can be taken to the block levels. But for example, there was another service which was the executive magistrate order for for basically taking birth certificates. Those orders were, for availing those orders, people used to come to DC office. However, last month we empowered our BDOs, who are executive magistrates also, and we have kind of issued a public notice as well that people need not come to DC office. They can very well go to their respective blocks and they can get their executive orders at the block level itself. So similarly, we are figuring out what other services can be delegated, again as per the instructions of Government of Meghalaya. मेघालय हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोरल पुलिसिंग कानूनी अधिकारों पर हावी नहीं हो सकती। कोर्ट ने वेस्ट गारो हिल्स के डनाग्रे में लाइसेंस्ड IMFL दुकान को तुरंत दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। जस्टिस HS थैंक्यू ने कहा कि शॉप ओनर ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी और चर्च लीडर्स या लोकल कमिटीज की आपत्ति किसी लाइसेंस्ड दुकान को बंद करने का कानूनी अधिकार नहीं हो सकती। शिलोंग के एक सीनियर एडवोकेट के खिलाफ एक लॉ इंटर्न से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पीड़ित इंटर्न का आरोप है कि एडवोकेट ने चैम्बर में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और बाद में चुप रहने के लिए 500 रुपए देने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेघालय में 2 अलग अलग सस्पेक्टेड हिट एंड रन हादसों में 3 युवाओं की मौत हो गई। शिलोंग के गोल्फ लिंक पर एक अज्ञात गाड़ी ने स्कूटर को टक्कर मारी, जिसमें 18 साल के बेंजामिन शबोंग और 17 साल की फेविला ग्रेस की मौत हो गई। वहीं यूमियम के पास एक अन्य स्कूटर हादसे में राहुल CH संगमा की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। Late night there was a hit and run. There was a vehicle which had hit a scooty with 2 youngsters out there, one male 18 years and a female 17 years. They were immediately taken to civil hospital, but they declared brought dead. Both of them belong from I think Maupun and Panthor. One belongs from Maupun and the other one from Panthor. UT case has been taken up. We are making efforts to identify the vehicle which hit them, and as soon as we have been able to identify, we will nab the driver. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अभी देखते हैं बाकी खबरें। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 19 साल की एक युवती के अपहरण और गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी।
अगले दिन क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान 2 आरोपी पुलिस हिरासत से भाग निकले, लेकिन बाद में उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। आरोपी रहते हैं, एक और आरोपी कार धीरे है और इसको देखिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो है ये अभी भी देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे से भीड़ टीम और काफी भीड़ है। अरे मारना मत यार। असम में बाढ़ की स्थिति में हल्का सुधार देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में किसी भी नई मौत की खबर नहीं है, लेकिन राज्य के 6 जिलों में अब भी लगभग 4,45,000 लोग प्रभावित हैं। ASDMA के मुताबिक इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 बनी हुई है, जबकि चराइदियो, शिवसागर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। नीचे नामाओ चलो नीचे। हाँ हाँ डूबोगे नहीं आप। কালি ৰাতি চৰকাৰক থকা মানুহ বচাইছে, কালি এইবিলাক মানুহ বচাব টেনচন নল'ব আপুনি। এখন চোৱা এখন আহিল ন এখন पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के मीरपुर में ताजा फायरिंग की घटना में 12 नागरिकों के मारे जाने और लगभग 50 अन्य के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे 37 पर एक्सटॉर्शन की घटनाएं लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिरीबाम से इंफॉल जाने वाले ट्रक्स को हथियारबंद गिरोह रोककर सुरक्षा बलों की मौजूदगी न होने पर गन पॉइंट पर पैसों की वसूली कर रहे हैं।
पेट्रोलियम और एलपीजी ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर एक्सटॉर्शन नहीं रोका गया तो वे अपनी सेवाएं बंद कर सकते हैं। सीजेपी के नेता सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनकी संगठन इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सभी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि पहले उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल किया जाना चाहिए। अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद।
Apex News, India, Northeast.